Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you are in the best of your health and must have enjoyed your holidays, right? So now it's time to get back to your work. This is your second class, right? Remember, girls, before our vacations, we had completed our lesson number 5. We have completed that lesson. पूरे उसके question answers, word meaning, sentences, we have done all that. And we had also done some grammar work as well. अब हमें composition करना है. Today we have to do some composition work. And you very well know that you have a separate section for that in your copies. आपने उसका एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है composition का काम करने का, तो उसी में आपने ये हमारा नेक्स्ट काम करना है. और डू नॉट फॉरगेट द मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपको इंडेक्स में मेंशन करना है सेकंड टर्म, ऑलराइट. और फिर उसके बाद आपको इसमें काम करना है, ठीक. अब लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड. वी हैव इनफॉर्मल लेटर्स. दिस इज़ ऑन न्यू टॉपिक. सो जस्ट टू गेट क्विक रिव्यू, हमने लेटर्स पहले किए हुए हैं, राइट. तो लेटर्स होते क्या हैं, खतूत किनको कहते हैं, ठीक है. लेटर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 किस्म के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? वो एप्लीकेशंस होती हैं या नोटिफिकेशंस होते हैं जो किसी भी हेड को लिखे जाते हैं, किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, और द प्रिंसिपल और द हेड मिस्ट्रेस और ऑफिसर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सो ऑन, एंड एडिटर्स ऑफ एनी न्यूज़पेपर, ऑलराइट. देन इनफॉर्मल लेटर्स वो खतूत होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को, अपने अप्रेंटिसेस को लिख सकते हैं, ऑलराइट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कि फॉर्मल लेटर्स आर वेरी प्रिसाइज, दे आर टू द पॉइंट, ये लिखे जाते हैं. और इनफॉर्मल लेटर्स में आप ज़रा थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू होती है और थोड़ा लेंदी भी हो जाता है ये. तो ये आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है, 2 किस्म के. Today we have to discuss the pattern of informal letter, all right. Informal letters mein first what you have to do is that you have to write the date, all right. And most important thing in composition writing is that you have to pay real attention to your punctuation marks, all right. इसमें आपको punctuation marks पे बहुत ध्यान देना होता है. आप देखिए कि आपने जब मंथ का नाम लिखा तो उसके बाद आपने कॉमा लगाया, then you have to put full stop over there, or this is called the date. Okay, first you have to write the date. After that you have to give some space, then you have to write the header. Header क्या चीज़ होती है? Header जो सेंडर्स का फुल एड्रेस होता है वो कहलाता है, ठीक है. इसमें फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेंडर्स फुल एड्रेस, फिर उसके बाद उसमें उसका हाउस नंबर, देन यू हैव टू राइट द स्ट्रीट और द रोड नेम इवन इफ़ यू नो दैट, एंड देन यू हैव टू राइट द सिटी, ऑलराइट. नाउ सी दिस दैट एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव टू पुट comma after it, then you have to put we usually write A, B, C. We do not write the specific name of the institution while we are studying, all right. So you put full stops in between them. Then after road you have to write comma. Then after the city you have to write the full stop. You have to put full stop, all right. Then comes the salutation. The next part of the letter is salutation. What are salutations? Salutations क्या होते हैं? They are the kind words with which you address somebody. जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उनको आप कितने मोहब्बत से या कितने एहतराम से उनको मुखातिब करते हैं, those words are called salutations. Okay, they could be dear uncle, dear friend, or you can write the name of your friend, or you can write a letter to your father or your mother or any brother or sister of yours, all right. इसके बाद बेटा आप you have to write the body of the letter. It comprises of 3 paragraphs. The first paragraph tells you about, you write greetings and reason for writing the letter, okay. And then in the second paragraph you have to write reason in detail. जिस वजह से आप ख़त लिख रहे हैं वो आप तफसील से फिर इसमें बयान करते हैं, ऑलराइट. इसी वजह से ये ज़रा लेंदी हो जाता है, ठीक. And in third paragraph, which is the conclusive paragraph,
इसमें आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। कर्टियस लीव टेकिंग नोट्स, यानी इसमें भी आप बहुत मोहब्बत से और कर्टियस अंदाज में आप रुखसत चाह रहे होते हैं। यू आर लीव टेकिंग नोट्स, यू हैव टू राइट ओवर हेयर, and then you have to write the subscription are these words, all right, and then signature, you have to write your signature, अपना आप आखिर में अपना नाम लिख देते हैं या अपना साइन कर देते हैं, all right. So these 7 points are very important in letter writing: the date, the header, the salutation, the body, and subscription and signature. अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के अपनी एप्लीकेशन या लेटर लिखा तो इंशाल्लाह आपका लेटर बिल्कुल सही होगा। एंड अगेन लुक एट द सब्सक्रिप्शन, व्हेन यू राइट द सब्सक्रिप्शन डू नॉट फॉरगेट टू पुट कॉमा आफ्टर इट, एंड देन व्हेन यू राइट योर नेम और योर सिग्नेचर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप आफ्टर इट. Girls, one thing I would like to point out over here that we have written yours over here, all right. Some students, they normally put apostrophe over here, which is not used actually. ठीक है, हम यहाँ पे apostrophe नहीं लगाते, ये आप इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है. वो मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे बार बार कर लेते हैं और ये बार बार बताई भी जा रही होती है. तो this time please keep this in your mind, all right. Okay girls, first we have to learn how to write the first paragraph. What should we write in the first paragraph? So over here you can see that in the first paragraph we have to write the greetings and the reason of writing the letter. ठीक है, आपको पहले पैराग्राफ में दुआ या कलमात या जो सलाम दुआ करते हैं उस तरह से अल्फाज बयान करने होते हैं, और फिर आप जो जिस वजह से आप लेटर लिख रही होती हैं वो वक्त मुख्तसरन बयान करते हैं फर्स्ट लेटर में, ठीक है. सो ऑलराइट गर्ल्स, अब आपको समझ में आ गया कि पहले पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे. नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी इसमें जनरल बिगनिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है. यू कैन स्टार्ट इट विद होप यू आर डूइंग फाइन और होप यू आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ऑलराइट. देन यू कैन राइट आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एंड होप द सेम फ्रॉम यू. And there is another option, you can also write hope you are in the best of your health. But remember girls, these are just few options. It is not necessary that you will write these specific sentences. अगर आपके पास खुद आप कोई अच्छा सा सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए बिगनिंग इसकी, तो ज़रूर लिखिए. ये सिर्फ एक चंद ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है. Yes girls, in the second paragraph you have to write the reason, all right, the reason in detail. जिस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हैं उसकी आपको तफसील लिखनी है, ठीक है. और वो तफसील जो है वो एक पैराग्राफ में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स में भी हो सकती हैं, ठीक है. तो इसमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना है इसकी डिटेल में. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी कैन डिस्कस इन आवर व्हाट वी कैन राइट इन आवर रीज़न. Received your letter yesterday. Glad to hear about you. I was busy so I couldn't reply earlier or sooner. Alright, these are few options. Girls, you can use any of these options. Okay, कोई भी एक इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपके दिल में आ रहा है आप इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे आप लिखने बैठ जाएंगे. Alright, ये इसमें से आपको जो मुनासिब लगे, जो आप लिखना चाह रही हैं वो आप इसमें से इस्तेमाल कर सकती हैं. Alright, देन रीज़न फॉर राइटिंग. अब जो जैसे आपको बताया गया था कि हमने सेकंड डिटेल वाले पैराग्राफ में हमने रीज़न लिखना है, तो वो उसकी स्टार्ट आप इस तरह से कर सकती हैं कि एनीवे द रीज़न आई एम राइटिंग यू दिस लेटर इज़ सो एंड सो, एंड और या फिर ये कह सकती हैं आई थॉट इफ़ आई कुड आस्क यू और इन्फॉर्म यू और टेल यू, वटेवर द रीज़न, जो भी आपका रीज़न हो, आप जो बताना चाह रही हो या किसी को इन्फॉर्म करने के लिए आपने लेटर लिखा हो कि जैसे आई वॉन्ट टू आस्क यू टू कम ओवर एंड स्पेंड योर वेकेशन ओवर विद मी, और टू आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई रिज़ल्ट, ऑलराइट, और आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई हॉबीज़, वट एवर, ठीक है. यहाँ पे इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं. और लास्ट ऑप्शन आपके पास हो सकती है कि आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई गिफ्ट्स विच आई रिसीव्ड ऑन माई पासिंग माई एग्ज़ाम्स एंड सो ऑन, ठीक है.
इन द थर्ड पैराग्राफ, दैट इज़ द कंक्लूसिव पैराग्राफ, इसमें आप कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में आप किस तरह से पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस तरह के हो सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, reply as soon as possible, this is all for now, all the best, convey or give my regards to your elders, to your parents, all right. So this is how you conclude a paragraph. Okay girls, ये आपको ऑप्शंस बता दी गई। अब आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन लिखना है, यू हैव टू फॉलो द सब्सक्रिप्शन एज इट इज़ टोल्ड टू यू, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सिग्नेचर, अपना साइन या अपना नेम, जिस तरह भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने पूरा अपना लेटर जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा लेटर इनफॉर्मल किस तरह से लिखना है, इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग आपको सब समझा दी गई है, ठीक है। हर चीज़ को इसी तरह से करना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक क्या दिया गया है, आपको रीज़न क्या बताई जा रही है लिखने के लिए। सो इसी लिहाज से आपका होमवर्क तैयार किया गया है, और होमवर्क है आपका दैट यू हैव टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हर टू लेंड हर बुक टू यू फॉर एन असाइनमेंट, यानी आपको उसके कोई बुक चाहिए जिससे आपको कोई असाइनमेंट तैयार करना है, ठीक है। तो आपके लिए अब रीजंस क्या होंगी, ठीक है, वो आप उसके मुताबिक लिखेंगे, ठीक है। और इसी पैटर्न को बेटा आपने फॉलो करना है, ठीक है। और बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम से जिस तरह से लिखा गया है बिल्कुल उसी तरह से आप कीजिएगा, और रीजंस आप जो है वो फिर खुद से लिखेंगी, ठीक है। और इसके लिए भी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डू नॉट वरी एंड यू विल बी प्रोवाइडेड द सॉल्व्ड PDF लेटर, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद भी लिख सकें, और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। यू कैन टैली योर वर्क विद द PDF लेटर, और आप देख सकेंगे इंशाल्लाह कि उसमें कोई गलती नहीं होगी आपके वर्क में भी और PDF के काम में इंशाल्लाह, ठीक है गर्ल्स। नाउ यू हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू नाउ नो हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। Note down the homework. Alright girls, inshallah, till we meet again next time, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.